Okay. So yeah, so we're going to do equation of value practically on Excel. So two concepts that we did last time for this were present value and future value. Before we go ahead, let's first do the meaning and then the formula and then the application. Okay. So yes, who is going to tell me what do you mean by present value? Anyone? What is the concept of present value? Maybe with the help of an example, you can tell me. Ma'am, present value basically means the principal amount, the amount which is invested in starting. Okay, so it is basically mean, let me give you a situation. Let's say after 10 years, if you invest certain amount, which is X, after 10 years, if you invest certain amount that is X, you will get 10 lakh rupees at the rate of 5%. So here, 10 lakh is what? Present value or future value? Anyone? I repeat, after 10 years, if you invest a certain amount X at 5% rate of interest, you get 10 lakh rupees. 10 lakh is present value or future value? Ma'am, future value. Right. And X is Present value. present value. Exactly. So I hope both the concepts are clear to you now, present value and future value. Just a quick recap of what I showed you last time was, if I want to apply the formula of present value, I write equal to PV automatically and then I start the bracket. The moment I start the bracket, you can see you will have to first put the rate here, then the period, then the payment, which usually in our case in these questions is not going to be there. Then if you have a future value, you're going to put that with a negative sign. Type again in our case is not going to be there, but when we are going to do ordinary annuity and annuity due, you will understand. So type basically means in the beginning of the year, or maybe at the beginning, at the end of the year or month. Okay, we'll come to that later. So right now that's what present value is. Now let's talk about the future value. If I want to apply the formula of future value, what I do is equal to FV, start the bracket. Again, I put the rate, then the period. Payment in our case is not going to be there. If there is a present value, negative of that. And finally, type is also not going to be there usually in our case. So we'll complicate it later, type and everything later. Okay. So let's start with a basic question. And all of you, please note, we are going to do the exercise. Okay, so not the examples. So page number 12.25 and exercise 12.5. That is question number 1. I'll just write it. Page number 12.25 and this is exercise 12.5 and we are doing question number 1. I give you 5 minutes to please just read the question. Just read the question, and then if you remember we did a format. I'm going to make the format right in front of you and you're going to tell me what you're going to fill where. Okay, 5 minutes all of you. Please read the question. I hope all of you have it. Please read it. Yeah, anyone, maybe Harsh, Sandra, Neelu, please send the question in the chat box. Some people don't have it. It's not example, it's question 1 of exercise 12.5.
When all of you have read it, just raise your hands, then we'll start. Okay, let's start then. Fine. So like I said, I'll ask you from each one of you, and then you will tell me what to fit where. Okay, so this is the kind of the format that we did last time also in theory class. Similar to that, we are going to adhere, and a few more things we are going to note. So I'm reading the question for all of you now. A debt of 2,000 due 2 years hence, and another of 5,000 due 5 years hence are to be paid off by a single payment 4 years hence. If the rate of interest is 4% compounded semi-annually, how much is this payment? Okay, so let's start with the first very basic question is what will be the focal date? Anybody? What will be the focal date? What will be the focal date? मैम 0 years ले सकते हैं 0 years मतलब तुम एक बात बताओ, तुम सब कुछ 0 तक ले जाओगी? ये डबल एफर्ट नहीं होगा? लॉजिक सोचो ना, इन द सेंस 2000 ड्यू इन 2 years है, तो 2 से पहले तुम 0 तक जाओगी. फिर यूर सेइंग अनदर 5 years में 5000 ड्यू है, तो 5 से तुम पहले पीछे जाओगी 5 years. फिर उसके बाद वो कह रहा है कि पेमेंट 5 years hence, तो 4 years आगे जाओगे. तो मतलब किसी भी एक इक्वेशन में भी, आई मीन एक भी उसमें तुम्हारे पास नॉर्मल सेम ईयर नहीं होगा. सो डजंट इट कॉम्प्लिकेट योर कैलकुलेशन? यस मैम दैट वे अगर आप एक इनमें से फोकल डेट लेते हो तो होता क्या है कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है. दैट्स द रीजन. Anybody, I told you the ground rule also that which year should be the focal date. Let's see how if anybody can answer, otherwise I'll tell. Anybody, what will be the focal date? No idea? Okay, let me explain. I told you usually we will take that focal date on which basically you have to find out x, in the sense in this question x किस period में है? 2 years, 5 years या 4 years? Anyone? No answer, huh? Concept is not clear. Okay, let me explain. See, let's start with this thing. The first thing it says debt of 2000 due 2 years hence. अब मुझे ये बताओ, anyone who can tell me what is the old obligation? Yes, what is the old obligation? Anyone? कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे उठ के आ गए हाँ एक हफ्ते बाद. The old obligation is 2000 due 2 years hence. पहले उसने बोला. फिर कहते हैं दो obligations है. दो obligations कौन सी है? एक तो है कि 2000 is due 2 years hence, and the second one is 5000 due 5 years hence. Now point is that hence are to be paid off by a single payment. So this single payment, let this single payment be x. The single payment, this is actually the new obligation, be equal to x. Clear? Now I have given you the hint. अब बता सकते हैं कोई focal date क्या होगी? I said focal date वो वाली होनी चाहिए जहां पे हमें x calculate करना है. So what will be the focal date? Anyone? Harsh. मैम 4 years hence. Yes, ठीक है. 4 years लेके देखते हैं, ठीक है? Let's see. So 4 years. So now the new obligation is x. Now we have to calculate. Now just maybe you can in your registers draw a timeline also if that suits you. So whereby 4 years आपने लिखा है and आपको 2 years से सबसे पहले आपको you have to understand whether you have to apply present value or future value. एक second, just hold on.
गौरी ये देखना ये चार्जर ऑन है कि स्विच? हाँ ठीक है, ओके या सो नाउ वी हैव टू सी 2 years और मुझे जाना है फोकल डेट दैट इज 4 years. So my question to all of you is here I will apply which formula, future value or present value? Anyone? मैम ज्योति? या फ्यूचर वैल्यू राइट, क्योंकि मुझे आगे जाना है 2 साल से मुझे 4 साल तक जाना है. तो लेट मी पुट द फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला. सो आई राइट फ्यूचर वैल्यू. द मोमेंट आई राइट फ्यूचर वैल्यू मेरे पास ये आया. ठीक है, अब देखो एक चीज, लेट मी गो बैक. रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने अलग से यहाँ पे लिख लिया. क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली. बिकॉज इट इज 4% and it is compounded semi annually, so it comes out to be this much. Secondly, time period कितना है? 2 years. हाँ सैंड्रा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ? यस मैम. ठीक है, क्वेश्चन में बोलता है इट इज 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली. 4% सेमी एनुअली, महीने में 2 बार. सो महीने में 2 बार, सॉरी साल में 2 बार. सो दैट मीन्स 4% डिवाइडेड बाय 2, राइट? Just या राइट, ठीक है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. अब सिमिलरली मुझे टाइम पीरियड निकालना है. 2 years से आई हैव टू गो टू 4 years. Who will tell me what will be the time period? Anyone? What will be the time period from 2 to 4? ज्योति, मैम are you 2 there? years. नहीं तो नीलू 2 को कन्वर्ट नहीं करूंगी, 2 into 2 करूंगी ना. Sorry मैम, yes. हाँ, 4. सेमी एनुअली अंडरलाइन कर लो भाई, अगर समझ नहीं आ रहा कंफ्यूजन है, ताकि तुम लोगों को ध्यान रहे हमेशा. सेमी एनुअली, ओके. सो ये हो गया. अब यहाँ लगाते हैं हम फॉर्मूला. मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई, मैं यहाँ से पिक करूंगी. ठीक है, कैसे करूंगी? आई सेड फ्यूचर वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इतना. पीरियड कितना है? इतना. पेमेंट कुछ है नहीं. प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 2000. टाइप कुछ है नहीं. So therefore, this is the future value of 2000 rupees after 2 years. Is it clear? Please ask. कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो अभी के अभी एक्सेल में कीजिए विद मी. प्लीज डू इट. इतना करके देखिए. पूरा फॉर्मेट सेम रखना बेटा. प्रैक्टिकल में we'll give you marks based on this. ये नहीं कहीं से भी कुछ भी पिक कर रहे हो, लिख रहे हो. So you have to use this, okay? Use the formula and use the format. I am waiting. How much time do you need? Please tell me. ये सारा करने के लिए कितनी देर चाहिए मुझे बताइए. Fast. How much time do you need, all of you? मुंह क्यों नहीं खोल रहे तुम्हारे मुंह आज? सर्दियां तो कम हो गई हैं, बोल नहीं रहे हो. खुशी, खुशी, not there, huh? लेशिका, minutes. how much? खुशी, Ma'am, 2 to 3 minutes. ओके चलिए. आई गिव यू 5. एंजॉय. चलिए, ये पूरा का पूरा आपकी एक्सेल शीट में होना चाहिए विद फॉर्मूला, एंड देन आई विल गो अहेड. आई एम वेटिंग, ओके, ऑल ऑफ यू.
Everyone done? चले आगे? Just raise your hand if I can go ahead. Okay, so let's do the second part of the question. Okay, now 5,000 था यहाँ पे 5,000 due 5 years hence. Please note all of you, 5 years hence, and I have to come to the focal date, which is 4. So now the question is, which formula will you apply? Anyone? Which formula will you apply? Present value or future value? Present. Very good, Sandra. So let's go to present value now. I write PV. Now rate of interest I have. Period is 5. That means 4 से 5 तक period कितना होगा anyone? Ma'am 2. Yes, Neelu. 2. See, that's why it is important to make mistake. अब उसने गलती की है तो कभी गलती नहीं करेगी आगे से. तो इसलिए बोलना जरूरी होता है. मन में रखोगे ना तो याद नहीं कर पाओगे. So you have 2, okay? No payment, but there is a future value which is 5,000. This is it. Is it right? All of you, please check. Do you get the same answer? And then I'll go to the second step. Do this much, please, in your Excel sheets. See how easy the calculation is. I mean, honestly, I feel Delhi University को ये theory paper पे तो कराना छोड़ ही देना चाहिए business maths. पूरे का पूरा Excel पे convert कर देना चाहिए. It will be so easy. Time कम लगेगा, दिमाग कम लगेगा, and quickly you'll get the answers. So, all of you, now my question is, question क्या था? मुझे निकालनी है x की value. वो कहते हैं इन दोनों कैसे आएगी x की value? Anyone? How will I get x? How can I find x? Anyone? Read the question and tell me. Yes. How will you find x? Read the question and tell me. सब सो रहे हैं भाई आज तो बिल्कुल ना मजा नहीं आ रहा मुझे पढ़ाने में. कहीं कहां से उठ के आ गए हो? A debt of 2,000 due 2 years hence and another of 5,000 due 5 years hence are to be paid off by a single payment 4 years hence. If rate of interest is 4% compounded semi-annually, how much is this payment? एक single payment से मुझे जो 2,000 वाला due है वो clear करना है और 5,000 वाला जो due है वो clear करना है. So how much will x be equal to? Anyone? Neelu, can you guess? It is very obvious, all of you. भाई आपको ये पे करना है, ये पे करना है. This is equal to x. Old obligation is equal to new obligation. That is what the concept of equation of value is. So therefore, x is going to be equal to this much. This should be your answer. You can check at the back also. This is equal to x. ठीक है? This is the answer. Or you can write at the end x is equal to 6970.71. This is your answer. Is it clear? If there is a doubt, please ask all of you. कोई doubt है तो पूछ लो. क्या कह रही हो? फिर से बोलो बेटा. सैंड्रा फिर से बोलो. हो गया? ठीक है. So this is your answer. This is how you're going to do a question. So let me repeat two things. One is you will formulate it like this. This format you will follow. A focal date, old obligation and new obligation. New obligation will come here, old will come here. Depending on the question, you will put present value or future value. And also please note, separately you calculate rate of interest and time period. उससे क्या होगा? वहीं से आपको बस यहाँ पिक करना होगा या फिर उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करके चेंज करके भी आप कर सकते हो. ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज और भी कर सकते हो. दैट इज अप टू यू. आई मीन अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. आप सीधा ये लिख सकते हो 4% सेमी एनुअली. लेट मी राइट इट. बट उससे शायद मैंने वहां यूज किया होगा तो वो हिल जाएगा.
वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे लिखना चाहते हो, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? अभी पता चलेगा कितना क्लियर है, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ आपको करने को, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी सी। फाइन, क्वेश्चन 2 प्लीज। क्वेश्चन 2। मैम आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो बेटा खुशी। मैम एक्सेल शीट में हम पीएमटी क्या लेंगे, जो फॉर्मूला जब आता है जैसे? हाँ बता रही हूँ, सुनो। देखो ये पीएमटी है कब के लिए, इस ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम। पीएमटी तब है जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने 10 लाख रुपए लिए, ठीक है, मैं उसका हर साल कोई वो कर रही हूँ, व्हाट यू कॉल ईएमआई पे कर रही हूँ। अगर इसके बीच में कोई पेमेंट करती मैं क्वेश्चन में दी होती तो वो मैं पीएमटी में डालती। पीएमटी का फुल फॉर्म ही है पेमेंट, बट ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे क्वेश्चन में, वो होगा भी नहीं, तो इसलिए हमें नहीं यूज करना वो। मैम सो वी विल टेक 0। हाँ 0, आई शो यू, इधर देखो। हाँ यहाँ देखो, ये फॉर्मूला है, ऊपर देखो 0 है ना, मैंने यहाँ 0 लिखा हुआ है, देखो। कैन यू सी इट? यस मैम। क्लियर? सो पीएमटी अभी तक एज ऑफ नाउ जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें तो कहीं भी नहीं था, जब होगा आगे आई लेट यू नो, ठीक है। अभी बेसिक कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 2 प्लीज ऑल ऑफ यू, मैं वेट कर रही हूँ लाइक आई सेड। सो यू विल स्टार्ट क्वेश्चन 2, प्लीज स्टार्ट विथ फर्स्ट। सबसे पहले ऐसा ही आप अपना फॉर्मेट बना लो, ठीक है, जस्ट लाइक अ फॉर्मेट लाइक दिस। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे अपनी ये वैल्यूज निकाल दो, ये सब हट जाएगा, ठीक है। और अब आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग। सो आप भी करोगे अपने एक्सेल शीट पे, मैं भी करूंगी अपने एक्सेल शीट पे, ठीक है। आफ्टर लेट्स से 5 मिनट्स और सो लेट्स चेक ओके ईच अदर्स शीट। फाइन, स्टार्ट प्लीज।
Anybody who has got the answer and what is the answer, please let me know. Ma'am, 1295.22. Yes, Neelu. Yes, that's correct. Let's just give 5 more minutes to others and then we'll share our screens, okay? Yours and mine, and let's see others also. Hold on. Yes, everyone done? Okay, now what we'll do is, hold on. Neelu, I will ask you to share your screen, okay? Let me just make you a presenter. And let's show everyone. Ma'am, actually, I haven't done it on Excel. I don't have my laptop with me right now. अच्छा अच्छा तो कहाँ पे कर रही हो, कैसे कर रही हो? मैम अब फोन पे कर रही हो? नोटबुक पर ही कर रहे हैं। नो मैम, फोन पे? नोटबुक पर ही कर रहे हैं। तो नोटबुक पे एक्सेल थोड़ी होता है यार, वो नहीं माना जाएगा। वो तो आ जाएगा, थ्योरी वाला आ जाएगा, एक्सेल ये तो नीलू ऐसे कैसे पढ़ोगी यार, प्रैक्टिकल में कैसे करोगे बताना। मैम मेरा लैपटॉप ना भी रिपेयरिंग में है, तो वो जब आ जाएगा तो आई विल प्रैक्टिस ऑन दैट एज वेल। मैंने बताया भी था, मैंने आज प्रैक्टिकल कराना है। चलो कोई और देखते हैं, किसी और का देखते हैं, उससे तो आ जाएगा थियरी से, एक्सेल से आना चाहिए। देखते हैं किसी का आता है कि नहीं। चलो फिर मैं वेट करती हूँ, किसी और का आएगा तब मैं वेट कर रही हूँ तब तक। ओके, यस ऑल ऑफ यू प्लीज डू इट, आई एम वेटिंग। हाँ जी, क्या हो रहा है भाई? हर्ष, क्या हुआ, कितना हुआ, क्या आ रहा है, जरा दिखाओ। Ma'am, I am getting 1344 something, but that is कोई in बात नहीं, negative. कोई I don't कुछ नहीं know. होता, वो नेगेटिव वाला तो मैं बता दूंगी, डोंट वरी। कैन यू शेयर द स्क्रीन, कैन आई मेक यू प्रेजेंटर?
Yes, ma'am, I can share the screen, Hold but I on, don't so know that if it is right or wrong. कोई बात नहीं, वो तभी तो वही तो दिखाना है सबको. होल्ड करो. हाँ चलो हर्ष, शेयर योर स्क्रीन. आई मेड यू द प्रेजेंटर. लेट्स सी ऑल ऑफ यू. हर्ष का स्क्रीन देखते हैं. एक सेकेंड हर्ष, मैं जो बोलूंगी वो करते जाना. अपना ये जो स्क्रॉल है, हाँ इसको वहां ले जाओ. पहले तो 710 वाली वैल्यू पे ले जाओ. हाँ मतलब इस पे एंटर करो 7. हाँ हाँ ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. लेट्स सी. ओके तो पहले तो है 8 इयर्स. ठीक है, फोकल डेट लिया है 5 इयर्स. ये यहाँ तक ठीक है. सो 800 ड्यू इन 3 इयर्स. ओके ऑल ऑफ यू, वेरी इंपॉर्टेंट हर्ष. पहले सबसे पहली बात, 800 ड्यू इन 3 इयर्स. ठीक है, और फोकल डेट है 5 इयर्स. हम 5 इयर्स की निकाल रहे हैं, एक्स की निकाल रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन ये आता है ऑल ऑफ यू. पहला क्वेश्चन आता है, वेदर वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू. एनीवन? लेट्स स्टॉप हियर ओनली. लेट मी आस्क एवरीवन. 800 ड्यू है 3 इयर्स में, मुझे ले जाना है उसको 5 इयर्स तक. तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी? वैल्यू. फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया बेटा. फ्यूचर वैल्यू. तो हर्ष तुमने पहले तो गलती यहीं कर दी ना. Okay, ma'am. ठीक है, तो पहले सुनो, अब सुनते जाओ. पीवी को एफवी कर दो. मेक इट एफवी ब्रैकेट. हाँ अब रुक जाओ एक सेकेंड, अब रुक जाओ. तुम्हारा हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% है. 6% डिवाइडेड बाय 4 किया होगा. सो दैट इज G14 से सेल से पिक किया है. इतना ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम. देन है आपका बिकॉज 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स से मुझे 5 इयर्स तक जाना है. दैट इज 2. 2 into 4 is 8. ये भी ठीक है. अच्छा हर्ष, एक और चीज. आई सेड ये 800 रुपए जो है, इसको इसके आगे माइनस डाल दो एक. तो जहाँ 800 लिखा है, हाँ ब्रैकेट के बाद, सॉरी हाँ यहाँ माइनस डालो. ठीक है, अब एंटर करो. मैम क्यों? एंटर. बता रही हूँ क्या था बेटा. जब मैंने आप लोगों को बोला था, जब मैं ये फॉर्मूला बता रही थी, कोई भी फॉर्मूला मतलब फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 800 रुपए. एक मिनट होल्ड ऑन. हाँ 800 रुपए जो हमारे ड्यू हैं 3 इयर्स में. अब इसको मुझे ले जाने 500 साल तक. ये मैं निकाल रही हूँ फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर में इसकी क्या वैल्यू होगी? तो ये जो 800 रुपए है, इट इज लाइक एन आउटफ्लो. बेसिकली दिस इज एन आउटफ्लो. तो बिकॉज इट्स इनग्रेन्ड इन द फॉर्मूला बाय द वे ऑल ऑफ यू. अगर आप ये नेगेटिव नहीं डालोगे तो लाइक हर्ष सेड, नेगेटिव आएगा अपने आप ही. Answer cannot be in negative, and it is ingrained in the formula, and that is why you will have to put the negative sign for getting it in positive. So okay, so Harsh gets 901.919. ठीक है, okay. Let's see the second one. Just hold on Harsh, एक second रुक जाओ. Okay, अब देखते हैं इसको. नीचे आ जाओ. हाँ ठीक है हर्ष, अब इसको इस पे जाओ. हाँ ठीक है, रुक जाओ. अब ये है 500 ड्यू इन 9 इयर्स हेंस. 9 इयर्स हेंस से मुझे आना है 5 इयर्स. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा एनीवन? 9 इयर्स से मुझे 5 इयर्स तक आना है. विच फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू. मैम प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू, दैट्स राइट. ठीक है, तो चलो देखते हैं. दैट इज G14 इज करेक्ट. ये यहाँ से पिक कर लिया होगा आपने. ये -16 क्यों कर दिया? पीरियड थोड़ी माइनस में हो जाएगा हर्ष. 16 से पहले वो माइनस हटाओ पहले. हाँ 0 है एंड देन 5 था. ये 500 का ब्रैकेट की जगह माइनस लिख दो इसको. बाहर वाला ब्रैकेट भी, हाँ ये वाला. बस ये कॉमा हटाओ, कॉमा हटाओ. ना कॉमा हटाओ. 500 के बाद जो कॉमा आ रहा है ना, हाँ इसको हटाओ. अब करो. परफेक्ट, दैट इज द आंसर. पीछे देखो, है ना? यही है कि नहीं? Yes, ma'am. चलो ये जो दूसरा पार्ट है हर्ष, एक बार आप फिर से एक्सप्लेन करोगे मुझे, मैं सुन रही हूँ. हाँ क्या लिखा आपने? कौन सा फॉर्मूला लगाया पहले तो दूसरे पार्ट में? फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू? Present value. राइट, करेक्ट. एक्सप्लेन, पूरा एक्सप्लेन करो कैसे किया. मैम पहले प्रेजेंट वैल्यू लगाया, फिर उसके बाद फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही हुआ है. देन Right. आफ्टर ये पीरियड, और फिर ये पेमेंट 0, Right. और फिर फ्यूचर वैल्यू -500 एंड देन Right. गॉट दैट. ठीक है. अच्छा एक चीज और हर्ष, ये जो तुमने नीचे टाइम लिखा है ना 20,
इसको बेटर विल बी कि देखो दो तरीके हैं, एक तो ये है कि इसको टाइम को आप सिर्फ इतना लिख दो, यहाँ क्या लिखा है, इसने लिखा है क्योंकि ये वेरिएट करेगा ना दोनों केस में अलग अलग, ये 20 आपने जनरलाइज उसमें मत लिखो, आप ये लिख सकते हो it says what single payment 5 years hence will discharge debt of 800 and 5 years, yeah, so it's better because अब हम 5 years तक जा रहे हैं या कहाँ तक जा रहे हैं उसके हिसाब से वो चेंज होगा, तो 20 ना करें या तो हम खाली क्वार्टरली लिख दें इसमें, डिपेंडिंग ऑन यू नो फ्रॉम वेयर आर वी मूविंग, और वी कैन स्किप इट ऑल्सो, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा एक चीज, ओके स्टॉप शेयरिंग हर्ष, ओके मैम। let me share it now. I mean it's the same what Harsh has done, but I just want to, here it is, ये ना, ये रहा, ठीक है। So I mean it's up to you, थोड़े बहुत changes here and there are okay. At the end, like I said, you can write x is equal to, is it clear all of you? कोई doubt है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड देन यू कैन प्रैक्टिस एट होम, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 3 ओनली, क्वेश्चन नंबर 3, and please note all of you, you will get a practical question जो 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के बिजनेस मैथ्स के हैं, उसमें एलपीपी सॉल्वर का क्वेश्चन होगा और इक्वेशन ऑफ वैल्यू का होगा, तो you can't do away with it like Neelu is doing it on pen और पेपर, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है, just give me a second, hold. Yes, all of you have started doing third question. Let's do it. मैं भी करती हूँ, आप भी करिए, ठीक है। इस बार कौन शेयर स्क्रीन करेगा ये मुझे पहले बता दो, हर्ष तो कर चुका, ज्योति विल यू बी एबल टू डू इट, आर यू देयर ज्योति, शी इज नॉट देयर, खुशी, खुशी गायब हो गई, खुशी, लेशिका आर यू देयर, मनीष सब गायब है, मानसी, मुस्कान, नीलू, नितिका, प्रतिभा, सैंड्रा, Yes, ma'am. yeah, Nitika, will you be able to share your screen? Nitika. Ma'am, ma'am, I'm attending the class on phone. Acha. Okay. What about you, Sandra? Can you share the screen? I'm attending class on phone. तुम लोग लेकिन कर कैसे रहे हो, लैपटॉप पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन ये बताओ मुझे। Yes, ma'am, doing on laptop. मैम लैपटॉप पे भी कर रहे हैं लेकिन फोन को ऐसे रख के फिर ऐसे लैपटॉप पे कर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सैंड्रा, व्हाट अबाउट यू? सैंड्रा, विल यू बी एबल टू शेयर द स्क्रीन? मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, फिर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। डू यू माइंड डूइंग इट? बिकॉज मैं चाहती हूँ तुम लोग, क्योंकि मैं ही करती रहूँ ना, कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिकल है, कर ले, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन करती रहो, लॉगिन भी कर लेना। सो लेट्स डू इट, आई एम ऑल्सो डूइंग इट, यू ऑल्सो डू इट, आफ्टर 5 minutes we will talk. Okay, start.
Yes, all of you. What is the answer that you're getting? Third point. Anyone? पहले तो मुझे बता दो फोकल डेट क्या लोगे थर्ड पॉइंट के लिए? मैम 5 years. That's right, हर्ष. बाकी सब सो रहे हैं? Everyone else is sleeping? किसी को नहीं पता हाँ क्या होगा? Right. Okay. Just hold on. पता भी कैसे चलेगा ना जब लैपटॉप ही नहीं है, कुछ नहीं है. मुस्कान ये क्या है? फोटो भेजी क्या है ये? मुस्कान कहाँ से आ गई? I have a surprise. ये क्या मुस्कान तुम्हारी स्क्रीन है क्या? I can see some page. All of yeah, okay. Right. ठीक है. जब लैपटॉप पे करोगे नहीं भाई ऐसी क्लास का कोई फायदा तो है नहीं. मैं तुम्हें बताऊं और प्रैक्टिकल करना होगा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों का क्या चल रहा है. सीरियसली दिस इज वेरी बैड. Sandra, I want to ask you something now. Are you ready? Sandra. मैम थोड़ा सा आता है. ओके. एक काम करो ना तुम अभी मतलब लॉग इन कर लिया कि नहीं किया पहले ये बताओ. Have you logged in from your laptop, Sandra? It's loading. हाँ. लॉग इन करके ना what I'll tell you is आप मुझे स्क्रीन दिखाओ मैं आपको बताती जाऊँ. चलो मैं ही बताती हूँ तुम लोग तो ना आ जाओ इधर. I think 710 something. नहीं हर्ष गलत है कोई बात नहीं मैं दिखाती हूँ. इधर देखो स्क्रीन. हर्ष कैन यू सी इट? Yes, ma'am. अब देखो अपनी गलती बताना कहाँ की है. ठीक है मैं बता रही हूँ आप क्वेश्चन. सो लाइक यू सेड यू वर राइट. फोकल डेट इज 5 years. वी नो दैट. सबसे पहले कहता है अ डेट ऑफ 3000 which is due in 6 years from now is instead to be paid off by 3 payments. तो मतलब ओल्ड ऑब्लिगेशन हो गई आपकी 3000 ड्यू इन 6 years. ठीक है. एंड देन 3 payments कौन सी? Let's write down in the new obligation. 500 now, 1500 in 3 years and a final payment at the end of 5 years. So this obviously you got from here only Harsh that you said 5 years because X said that's what I said the thumb rule is. तो हमने 5 years ले लिया. Now if the rate of interest is 6% compounded annually, how much is the final payment? So I have to find this X. Basically it means this is equal to this plus this plus this. तो X मैं इसमें से ये सब minus कर दूंगी. So I will get the answer. So let's see here. Now the first question, Sandra, I want to ask you this. Just answer this. 3000 which is due in 6 years from now. So on this 3000 which formula will I apply? Future value or present value? Present. हाँ इधर देखो फोकल डेट है 5 years. मुझे चाहिए 6 years. तो 5 से 6 पे जा रही हूँ तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू? मैम फ्यूचर. हाँ तो ये मैंने तभी बोला आप लोगों को या तो आप टाइमलाइन बना लो. अभी अगर स्टार्टिंग है सो मेक इट फोकल डेट उसमें लिखो और वहां से देखो आपको आगे जाना है या पीछे जाना है. ओके सो इट इज फ्यूचर वैल्यू. सो हियर इट इज. हर्ष प्लीज चेक. पहले तो हर्ष ये चेक करो इसका आंसर आपका 2830.19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Ma'am, old obligation is correct. I have made some error in new obligation side. ठीक है we'll come, don't worry. So here it's present value, rate of interest we have picked it from here and 1 year 6 है क्योंकि 0 and minus 3000. So this is the formula. Okay, now let's go to the new obligation. Harsh just check in दोनों में से किस में गलती है ये चेक करो पहले. 500 वाले में या 1500 वाले में? Ma'am, let me check. 500 का कितनी वैल्यू आ रहा है? 500 का I have 471 something. यहाँ गलती है. और 1500 का कितना आ रहा है? Both are wrong, ma'am. दोनों हाँ ही ठीक है है. कोई बात नहीं. नो प्रॉब्लम. लेट्स सी. देखो 500 नाउ दैट मींस नाउ 500. सैंड्रा अगेन योर क्वेश्चन. 500 पे प्रेजेंट वैल्यू लगाऊं या फ्यूचर वैल्यू? सैंड्रा on 500 which formula? Present value or future value?
मैम नहीं समझ आ रहा। यार देखो ना, समझना क्या है, यहाँ देखो 5 लिखा है, 5 years, यहाँ लिखा है नाउ। टाइमलाइन बनाओ, टाइमलाइन को नाउ तक ले जाओ, 5 years से नाउ तक ले जाओगे, नाउ तो पीछे जाओगे या आगे जाओगे? जाएंगे पीछे जाएंगे ना, तो क्या हो गया? वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो नाउ से मैं 5 तक जा रही हूँ, सो फ्यूचर वैल्यू। सो द फॉर्मूला इज, हर्ष प्लीज चेक नाउ, चेक हर्ष, वेयर इज योर मिस्टेक? देखो प्लीज चेक हर्ष एंड टेल मी। मैम एक बार फोकल डेट वाला वापस बता देना, 500 नाउ वाला। हाँ, आई एम सेइंग फोकल डेट 5 है, ये पता है ना क्यों है? कोई डाउट है इसमें? पहले ये बताओ। नो मैम। No doubt. So now he's saying 500 now. Now means जहां से टाइमलाइन शुरू हो रही है, and I have to calculate focal date तक जाना है मुझे now से 5 तक जाना है, तो now से 5 तक जाऊंगी तो फ्यूचर डेट में जा रही हूँ ना, तो फ्यूचर वैल्यू लगाऊंगी। ओके मैम। जस्ट लाइक 6 years से 5 year तक गई थी तो प्रेजेंट वैल्यू लगाया था, पीछे जा रही थी इसलिए प्रेजेंट वैल्यू लगाया था, यहां आगे जा रही हूं इसलिए फ्यूचर वैल्यू लगाया। सिंपल कॉन्सेप्ट। व्हेन यू गोइंग बैकवर्ड्स प्रेजेंट वैल्यू, व्हेन यू गोइंग फॉरवर्ड्स फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर में जा रहे हो फ्यूचर वैल्यू। ओके हर्ष, वेयर इज योर मिस्टेक? प्लीज टेल मी, आई वांट टू आइडेंटिफाई दैट। हर्ष, यस मैम। पता चला नहीं पता चला? नहीं पता चला। मैं बताती हूँ, सुनो। तुम अपना फॉर्मूला देखो, ये 500 पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाया है कि नहीं? यस मैम, 500 पे ठीक है, लगाया है। ठीक है। 500 एफवी के बाद क्या लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट में? मैम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस मैम, रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत था मेरा। हाँ तो बस अब ठीक करके बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं? 669.11 आ रहा है कि नहीं? चेक दैट। यस मैम, आई गॉट इट। गॉट इट ना? और ये हो गया 1500 वाला, बताऊं कि गलत है? सो 1500 इज 3 years, मतलब 3 years से मुझे 5 years अगेन मुझे फ्यूचर वैल्यू लगाना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ यू प्लीज पुट द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू। नाउ द पॉइंट इज, मुझे निकालना है x। मुझे पता है दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो व्हिच मींस इसमें से मुझे ये दोनों चीजें माइनस करनी है। सो आई हैव टू, द फाइनल वन, द फाइनल आंसर दैट आई विल हैव इज दिस, सॉरी, minus this is the answer. All of you, at the end you can write down x is equal to 475.68. Any doubt, anyone? Please ask. This is the last thing for today, so you can practice more questions. There's an entire exercise that you have for it, and this is for practical purpose, that Excel में इस type से आपको solve करना है, ठीक है? All right, I'll just quickly take attendance. If there is any doubt, please ask. और ये बच्चे इतने कम क्यों हैं? Any idea? सैंड्रा, any idea? मैं तभी बोल रही हूँ तुम ग्रुप बना लो भाई, 3rd ग्रुप का, फिर ये लोग कल को बोलेंगे हमें पता नहीं। बना क्या? के आपको ऐड कर दिया। अच्छा कर दिया, लेकिन ये क्या कुछ रीजन है? कुछ पता है क्यों इतने कम है आज? लग रहा है क्योंकि आज फ्राइडे में जनरली हमारी क्लास शुरू होती है 11:45, तो वो लोग नहीं होंगे अभी चेंज तक हो गया टाइम टेबल। अच्छा अच्छा, चलो ठीक, नो प्रॉब्लम, वो तो मैंने तो इन्फॉर्म कर दिया, अब दैट इज देयर हेडेक। ठीक है, सो वी विल मीट टुमारो नाउ। ओके ओके मैम। ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।